So very good evening, everybody. And today is the second revision lecture that I am taking. No, this is revision lecture number 2. In the first lecture, I took EMI, right? Yeah, I took EMI and we had done it. So now I am going forward with lecture number 2 of the HSC 2021 examination. And we are going to look at AC circuits today. So today's topic is AC circuits. AC circuits is your topic, right? Now in AC circuits, no, I will be doing Sahil the derivations also. I'm trying to finish off all the numericals first, and then I can do the questions which are related to, yeah. So I'll do this and then I will do the long answers. That's what I'm thinking of doing. Okay, and short answers में अगर आपको कुछ भी doubt है तो आप मुझे बताएं, कोई भी कुछ भी, because I have the question bank. So in case you face anything, I thought I'll do all the derivations along with all the numericals. Is it fine, Sahil? Okay. So AC circuits में जो पहला question हमें पूछा गया है, that is based on resonant frequency. So let's look at resonant frequency. Do you agree resonant frequency is 1 upon 2 pi root of LC? Yeah, Anand, I'll give you the contact number. You can send your doubts there. All of you can send me the doubts on this particular WhatsApp number. I have sent it in the chat box. And in the next lecture, the first 15 minutes, we can discuss all your doubts. Is that clear? So you can send all your doubts on this WhatsApp number, which I have just put up. And you just let me know, all the doubts that you have. Just mention your name and the batch that you belong to and just write HSC 2021. So I will understand when you say HSC 2021, I will understand it's doubts for the current batch. So this is the formula in Hertz. And if it is radians per second angular frequency, it will be 1 upon root of LC, which is in radians per second. Okay. We have done quality factor also. If you remember, quality factor is 1 upon R root of L by C. This is quality factor. You remember this formula? 1 by R root of L by C. My question to you is, what is the relation between bandwidth, resonant frequency, and quality factor? Anybody? Anybody? What is the relation between bandwidth, resonant frequency, and quality factor? Anybody who can think about it? The relation between bandwidth, yes, Nandini, very good. Anybody who can come out with that formula? So Nandini has already given me the answer. What about others? What is the relation between bandwidth, quality factor, and resonant frequency? क्या है उसका formula? We have derived it. So quality factor is nothing but, yes, very good. Quality factor is nothing but resonant frequency upon bandwidth. Do you agree, everybody? Quality factor को कोई unit नहीं रहता. It is 1 by R root of L by C and it does not have any unit. Quality factor is just a number. If the number is more, then the quality is more of that particular signal. और सिग्नल कैसे रहता है, बहुत ही फाइन होना चाहिए, याद है ये. और ये जो पीक पॉइंट हमें मिलता है, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते थे. So let's look at the first question and see whether you're able to identify the data for the first question.
अ चार्ज्ड 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. सो डेटा में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड. माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 to the power minus 6. And L value is given as 81 millihenry. What is the angular frequency of oscillation? मतलब it is very clear कि हमें क्या पूछा गया है? Omega R. And we obviously know what the formula is. Omega R is the resonant. Suffix R मतलब resonant. इसे suffix R लिखा है root of LC. So this is going to be nothing but root of L क्या है? 81 into 10 raised to minus 3 into 10 into 10 raised to minus 6. That means this is 1 upon root of 81 into ये minus 6 minus 3 minus 9 होता है, minus 9 plus 1 8 होता है, वो बाहर आके क्या बन जाएगा? minus 4 बन जाएगा. रूट ऑफ 81 क्या रहता है? रूट ऑफ 81 it is 1 upon 9 into 10 to the power minus 4, and this is nothing but 1 by 9 into 10 to the power 4. बराबर है. और फिर ये हो जाएगा nothing but, yes, so this can be written as 10 by 9 into 10 to the power 3, which is going to come as 1.1 into 10 to the power 3 radians per second is our final answer. Any doubts here? So this question is based on the resonant frequency formula. It's a very clear-cut question and there is no twist or turn in this particular question. If any doubt or difficulty, let me know. Others give, let me know whether I can go ahead. Yes, all questions I am doing currently from the question bank. Yes, Priya, I can show you the previous slide. You mean the formula slide? Okay. So this we used to draw for current versus the frequency. And if you remember, we used to take one point here. This was called lower cutoff frequency. This I will do in detail when I'm doing the theory. Higher cutoff frequency, and this is the maximum current. And this was called bandwidth, if you remember. Bandwidth is FH minus FL. जैसे मैंने आपको सिखाया था एक बार, मैंने कहा था कि अगर आप रेडियो सुन रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हैं, तो जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपने सुना रहेगा ना, यू नो 98.2, 96.4, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो अगर मैंने आपसे पूछा कि एफएम की बैंडविड्थ क्या है, तो जो हमारा एफएम होता है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि बैंडविड्थ ऑफ एफएम क्या है? फिर अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि जो एफएम है, मतलब एक रैंडम एग्जांपल बता रही हूँ कि वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक अगर वो बजा रहे हैं हम लोग, तो फिर उसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? यस, करेक्ट, वेरी गुड. यस, ध्रुविन, शॉन, या इट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 88 मेगाहर्ट्ज से लेके अगर हम 108 मेगाहर्ट्ज तक अगर हम बजा रहे हैं, देन 20 मेगाहर्ट्ज हमारा बैंडविड्थ हो जाएगा. डू यू एग्री? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? FH माइनस FL हमारा फॉर्मूला है. इसकी वजह से हम दोनों की क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं. राइट, वेरी गुड. Can I move ahead from the slide to the
Okay, please give me a thumbs up if you have completed, so I will know to go ahead or not. Everyone has done? Done. Everybody? Komal says go ahead. Priya says yes. What about others? Can I move ahead? Okay. So I'm going ahead to the next question. So the next question is a very important question. I feel that it's quite important because here we have to do a little bit of derivation. So before I jump into this question, I will give you the formula for this question. Now, all of you have, you all remember that we had studied the alternating current signal. Don't you remember? This is your signal. I hope all of you remember this. So if I take theta and say this is my current, then can I say that this is my maximum value? Let's say this is your I naught maximum value. This was 0, this was pi by 2, this was pi, this was 3 pi by 2, and this is 2 pi. So this is one cycle, right? You can write it in terms of time also. Axis either theta है या t है, टाइम एक्सिस है. अब ये अपना पहला एक साइकिल हो गया. कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये भाई अपना एक साइकिल है, ये भाई अपना एक साइकिल है, मैंने आपको बताया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वन साइकिल? व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? What is the average value of one complete cycle? Very good. एक complete cycle का average value होगा 0. Right? जितने positive points है उतने ही negative points हैं. तो उसका average value क्या हो गया? 0 हो गया. Right? RMS value तो सबको पता है. Do you agree? RMS value तो सबको पता है. अब हमें क्या करना है? अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है उन्होंने. उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट ओवर हाफ साइकिल. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट ओवर हाफ साइकिल? सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज करंट. सो हमें एवरेज करंट निकालना है ओवर हाफ साइकिल, मतलब हम इतना ही पकड़ रहे हैं. आप समझ रहे हैं? पूरा तो पकड़ नहीं सकते, एवरेज वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी. तो ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पाई बाई 2 हो गया, और ये रखा है पाई. अब देखो ध्यान से, मतलब ये पोर्शन की बात हो रही है. जब हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ढूंढना है, दैट इज आई एवरेज, you know the average value is nothing but the area of this entire portion. कितना एरिया कवर हो रहा है. तो वो एरिया को कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, राइट? वी हैव टू टेक दैट होल एरिया फ्रॉम 0 टू पाई आई इंटू डी थीटा अपॉन बेस लेंथ. बेस लेंथ मतलब इतना लेंथ. इतना लेंथ क्या है? पाई है. समझ में आ रहा है? बेस लेंथ इज नथिंग बट पाई. अब बताओ, यहां पर कोई मुझे बता सकता है आई का वैल्यू क्या है? हाउ इज दिस सिग्नल रिटन एज? ये जो साइनसॉइडल सिग्नल है, हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको लिखते हैं आई इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज योर आई एम और आई नॉट. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज आई एम मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा, राइट? ये हमारा साइनसॉइडल सिग्नल का ये होता है, मतलब इक्वेशन होता है. तो हम क्या लिखेंगे? 0 टू पाई ऑफ आई एम साइन थीटा अपॉन पाई. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई एम, हम लोग बाहर निकालेंगे,
What is the integration of sin theta minus cos theta from 0 to pi upon pi? So ये क्या हो जाएगा, im upon pi upper limit, so minus cos of pi minus of lower limit, so plus cos of 0. Can you tell me how much you all are getting this answer? Can you tell me what is the answer that you are getting? एवरेज वैल्यू को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एवरेज वैल्यू को हम कुछ दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या आंसर दे सकते हैं? दूसरा कौन सा आंसर दे सकते हैं? मीन वैल्यू, वेरी गुड जितेश। एवरेज वैल्यू का एक दूसरा नाम, अगर आपको एवरेज वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिखा तो अनदर नेम दैट दे विल पुट ओवर देयर इज मीन वैल्यू। सो चाहे वो मीन वैल्यू लिखे या वो एवरेज वैल्यू लिखे, बात तो वही हो रही है, बात तो वही हो रही है। आर यू गेटिंग इट? Yeah. So how much is the final value? Can I say it is Im upon pi? ये 2 हो जाएगा, minus 1 minus of minus 1 plus 1. So हमें 2 Im by pi मिल रहा है। ये हमारा I average है और we can just call it as I mean. Please take this down and then I will tell you the other half of it. Is it over? It's the equation, Manali. It is the equation of any sinusoidal wave. Like if it will be different for square pulse and it will be different for rectangular beta. यानी कि अगर वो ऐसा दिखता है ना तो ये इक्वेशन नहीं फॉलो करता। यू अंडरस्टूड? अगर वो ऐसा दिखता है तो भी वो इक्वेशन फॉलो नहीं करता। या आई एम मतलब मैक्सिमम आईमेंट, आई नॉट भी लिख सकते हैं, आई एम लिख सकते हैं, स्मॉल आई एम लिख सकते हैं, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा आई नॉट लिख सकते हैं आप, you know, so the final you can write it as 2 I naught upon pi also. तो आप जिस तरीके से लिखना चाहते हैं नोटेशन उसके हिसाब से आप यूज कर सकते। It just means maximum value.
Please tell me when it is completed, because the question is not over yet. Yeah, I can give you 1 minute. Could you tell me how much is 2 upon pi? Can you calculate and tell me how much is 2 upon pi? Yeah, are you getting 0.637, everybody? So you will get this as 0.637 of I naught. This is the average value. I hope you're getting it, what I'm saying. Yeah. So now we are going ahead to find out the RMS value. This was the average value, and now we are going ahead for the RMS value. So RMS value for full cycle you already know. That's where the answer will differ here. You already know for the full cycle. What is it for the full cycle? What is it for the full cycle? For the full cycle, it is Im upon root 2. The RMS value for full cycle is Im upon root 2. Do you agree what I'm trying to tell you? Yes or no? Yes. So now let us check about the RMS value. So if it is, so we have understood what is the value for our average value of our half cycle. So similarly, we can try the root mean square value. And remember, the same derivation you can do by using the t also. I have used theta, but it is not necessary. We can always use in terms of t also, time as your axis also. Is that clear? So you can use t 0 to t by 2. The whole cycle is 0 to t, right? So 0 to t by 2 करके integration करके आपको similar answer मिल जाएगा. So that is not going to be difficult.
Okay, now anybody has any idea how can we find out RMS value? कोई सोच सकता है? So इतना तक अगर आप समझ पा रहे हैं तो how do we calculate the RMS value of half cycle? Yes. Okay. So now let us, can I move ahead? Yeah. Yeah. Okay. So now when I'm taking the RMS value, that is IRMS. Okay. Root mean square. What is the name? Root mean square. Matlab, it will be the same formula that I used here. Did everyone understand how I use this formula here? This is the area under this curve. Matlab, ये पूरा area consider किया है. Upon, what is this? This is nothing but base length. So what is the difference now when I'm going to consider RMS value? Anybody who can think about it? It will become 0 to pi. 0 to pi. What should I write? I will write it as I square into d theta upon pi. ये समझा आपको? What should I write? I should write it as 0 to pi I square d theta. मतलब everything is become root mean square. तो अगर हम यहाँ IRMS square ले लेते हैं, so हम ऐसा लिख सकते हैं 1 upon pi 0 to pi I'm using the same notation because I used IM there. You can use I naught also. Sine theta the whole square into d theta. I hope all of you are comfortable with integration. 1 upon pi, what will this come as? IM square. What should this come as? 1 minus cos 2 theta upon 2, 0 to pi d theta. ये एक ही बार आपको करना है, बार बार नहीं करना पड़ेगा. Is that clear? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? What will happen here? This will become 1 upon pi IM square. ये क्या हो जाएगा? I'll take the 2 over here. This will become 1 minus cos 2 theta from 0 to pi. D theta is obviously gone. So can you tell me what will be the answer for this? Can you calculate this for me? Can you calculate this for me? ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे वो इंटीग्रेशन है. I put this wrong. ये इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा फ्रॉम 0 टू पाई. इंटीग्रेशन यहाँ पे है फ्रॉम 0 टू पाई. मैं कर ही देती हूँ यहाँ पे, फिर आप आगे बढ़ना. 1 अपॉन पाई मतलब आई एम स्क्वेयर इंटू 2. यहाँ पर आएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू पाई. अभी आप कर पाएंगे? अभी आप कर पाएंगे? देखो क्या आ रहा है. व्हाट आर यू गेटिंग? सबको आंसर मिलेगा? आर यू गेटिंग आई एम स्क्वेयर अपॉन 2 पाई? ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है इतना ही बताओ.
वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई 0 है, माइनस लोअर लिमिट तो बचेगा ही नहीं. आर यू गेटिंग ओनली पाई इनसाइड, और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आई आर एम एस क्या मिल रहा है, आपको क्या मिलेगा, आर यू गोइंग टू गेट आई एम बाय √2. समझा डेरिवेशन? आई होप यू आर गेटिंग इट. इसका सी इन्होंने हमने क्या किया है, हमने आरएमएस वैल्यू के लिए रूट मीन स्क्वायर जो हम हमेशा डिफाइन करते हैं यहाँ पे सॉल्व किया है, दैट इज करंट का स्क्वायर इनटू डी थीटा. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट ओवर हाफ साइकिल. हमने ऑलरेडी आपको पहले यहाँ क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाला. अभी एवरेज वैल्यू कितना है हमारा एवरेज वैल्यू है आई एवरेज, आपको कितना मिला, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 ओनली. आई एवरेज हमें मिला 2 im पाई. ओके, आई आरएमएस हमें क्या मिला, im/√2. अभी आप मुझे बताओ, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रिलेशन, क्या आपको रिलेशन मिल रहा है. आई एवरेज कैन आई राइट इट एज आई एवरेज इज इक्वल टू 2/पाई, ऐसे रहने दो. कैन आई राइट आई एम एज, आई एम को क्या लिख सकते हैं, √2 IRMS लिख सकते हैं. सो अगर हम इसको √2 IRMS लिख देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल रहा है दिस पर्टिकुलर आंसर. आर यू क्लियर विद दिस, एवरीवन हैज अंडरस्टूड. ये आई एम का यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, आई एम को मैंने √2 IRMS डाला तो मुझे ये आंसर मिलता है. आर यू क्लियर, एनी डाउट. आई एम लुकिंग एट इट वंस अगेन. पहले हमने क्या किया, हमने हाफ साइकिल का फॉर्मूला लगाया, आई एवरेज इज 0 to पाई आई डी थीटा अपॉन पाई, मतलब एरिया कवर्ड इन हाफ साइकिल, एरिया कवर्ड इन हाफ साइकिल अपॉन बेस लेंथ, और वो बेस लेंथ क्या है, पाई है. फिर हमने उसमें फॉर्मूला डाला, हमारा फॉर्मूला क्या आया, 0 to पाई आई डी थीटा अपॉन पाई. अब आई क्या होता है, कोई भी साइनसोइडल वेव, आधा हो पूरा हो, सबका इक्वेशन आई एम साइन थीटा ही होता है. और यू कैन राइट इट एज आई एम साइन ओमेगा टी. अगर आप ओमेगा टी लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेशन में क्या आने वाला है, डी टी आएगा. अब यहाँ हमारा क्या आएगा, डी थीटा आएगा, सॉरी आई मिस दैट, डी थीटा अपॉन पाई. सो देन वी सॉल्व दिस, और हमें सॉल्व करके एवरेज वैल्यू मिल रहा है. वो एवरेज वैल्यू अभी सबको पता रहना चाहिए, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितना है, 0.637 I0, और फुल साइकिल के लिए तो वो 0 ही है, राइट. ये हाफ साइकिल निकाला जा रहा है. फिर हमने क्या किया, हमने आरएमएस वैल्यू निकाला. आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट लिया, मीन का स्क्वायर किया, और हमें आंसर मिला im/√2. क्लियर है सबको, हैव यू कॉपीड दिस डाउन, हैव यू कॉपीड दिस डाउन. Yeah, actually I am deriving it because no, there is no direct substitution. We are deriving both. But even if you don't derive the RMS value, that's okay. You can just say that, see, because once you know average current, and then you can just say that, IRMS is im/√2. वो allowed है. अब समझ रहे ना? Yes. बट इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट डेरिवेशन. एक में हम लोगों ने डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा वो वाला किया, दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा का किया. नो नो मृणाली, मैंने तुमको बता दिया कि वो कैसे आता है, ताकि अगर क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्ट भी किया तो आपको आना चाहिए, वैसे भी ये जरूरत है. ओके, कैन आई टर्न द स्लाइड. कैन आई, ओके. सो व्हाट इज आवर एवरेज वैल्यू, तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारे लिए ना. एवरेज या मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच का एक रिलेशन मिल गया है. यस ध्रुविन, बट इतना भी नहीं है, मैंने चेक किया है. मैं बताती हूँ ध्रुविन, ठीक है. जैसे जैसे हम जाएंगे ना मैं बताते जाऊंगी.
ठीक है. सो दिस इज 2√2 IRMS अपॉन पाई विच इज आई एवरेज वैल्यू. सबका आ गया. अभी आप सेकेंड क्वेश्चन, सेवेंथ वाला क्वेश्चन पढ़ के आप क्या मुझे आंसर बता पाएंगे? सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो क्या आप मुझे आंसर दे पाएंगे क्या? एवरीवन रीड द सेवेंथ क्वेश्चन ऑन द स्लाइड. If the peak value of an alternating EMF is 15 volt, कोई मुझे बताएगा ये 15 वोल्ट क्या है? ये जो 15 वोल्ट दिया है, ये 15 वोल्ट क्या है? If the peak, very good, very good. Okay, so everyone is answering correctly. पीक वैल्यू मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू उसने दे दिया है अपने को, राइट? और वो पूछ रहा है व्हाट इज द मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल. अभी तो आपको फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही है. मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू सब क्या है? सेम है कि नहीं? सो व्हाट इज द मीन वैल्यू? व्हाट इज द मीन वैल्यू? What is our mean value? Our mean value is nothing but 2Im upon pi, right? What is our peak value or mean value? ये तो 15 होता है. So this is 2 into 15 upon pi. Can you please calculate and see? 30 upon 3.14. चेक करें आप कितना आ रहा है. 30 अपॉन पाई आना चाहिए. आ रहा है क्या? देखो. आ रहा है 9.5 कुछ आता है. 9.5 करके कुछ आता है. जी जी, करेक्ट. जी, 9.548 परफेक्टली आता है. सो दिस ऑल्सो इज डन. इज इट क्लियर गाइज? इसलिए मैंने वो आपको डेरिवेशन बताया क्योंकि फिर सिक्स्थ आएगा तो ही अपने को सेवेंथ आएगा. Clear everybody? Any doubt or difficulty, please ask me again. So this is an important question of the chapter of AC circuits in the question bank, where they are asking us the relation between the average. ये करंट ही नहीं, वोल्टेज भी रहेगा तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, सिर्फ IRMS के जगह पे VRMS हो जाएगा, राइट? आई नॉट के जगह पे V नॉट हो जाएगा, उतना ही डिफरेंस है. बट प्लीज पढ़ लेना कि क्या दिया है, यू नो. So like here I have used I mean, so I should be writing this as V mean is equal to 2 into Vm upon pi. So please read the question. ऊपर वाला करंट है, नीचे वाला वोल्टेज है. So ये आंसर जो आपको मिलेगा 9.548, ये वोल्टेज में रहेगा और जो हमें यहाँ मिल रहा था वो सब एम्पियर में रहेगा. ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? तो वोल्टेज हो या करंट हो, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू जो भी हम लिखते हैं उसमें सिर्फ वो Vm या Im से चेंज होता है, बाकी सब सेम रहेगा. ओके, कैन आई प्रोसीड? लेट मी नो. तो हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं. क्या हम चौथे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या so now we are talking about just a minute, just give me 1 minute.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट है, सबका दिमाग चल रहा है। सीरीज एलसीआर सर्किट है, फॉर्मूला रिवाइज करें सीरीज एलसीआर के लिए। फॉर्मूला वैसे तो यस, सीरीज एलसीआर सर्किट का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं बिफोर वी जंप टू दिस। आर, एल और सी तीनों है। नॉर्मली वो आरएलसी वाला सर्किट ही पूछते हैं, नॉर्मली वो आरएलसी वाला सर्किट ही पूछते हैं। एम आई ऑडिबल गाइस? यू नो आई एम जस्ट चेकिंग, बीच बीच में इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये आर है, एल है और सी है। ये अपना जो होता है ये ई आर है, ये ई एल है और ये ई सी है। देखो लास्ट मिनट रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी हो कितना भी साल भर पढ़ ले तो फिर भी एक रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो ये ई आर है, ई एल है, ई सी है। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बोला था याद करने के लिए, याद है? ऐसा कुछ ट्रायंगल था और एक फाई था, और आपको बोला था कि यहाँ ई आर है, यहाँ आप डिसाइड करेंगे ये ई है, दिस कैन बी आइदर ई एल माइनस ई सी और इट कैन बी ई सी माइनस ई एल, right? So you can decide what you want, like depending on what's the data given. Okay. ये कौन सा ट्रायंगल है? मैंने आपको वोल्टेज ट्रायंगल मतलब समझाया था। और ये वाला अगर आपको याद है, ऐसा फाई है, यहाँ Z है, यहाँ R है, दिस इज आइदर XL माइनस XC और इट इज XC माइनस XL डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज बिगर। मतलब पाइथागोरस ही लगानी है अपने को। आर यू रेडी गाइज? So this is the impedance triangle and the left side is the voltage triangle. ये अगर आपको याद रहा ना, ये ट्रायंगल अगर याद रहा तो फिर सारे फॉर्मूला तो सामने है। व्हाट इज ई? ई इज अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस आइदर ई एल माइनस ई सी और ई सी माइनस ई एल द होल स्क्वायर। व्हाट इज जेड? जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। गॉट इट? So let's attack the question, right? Based on this, इतना ही अपने को याद रखना। रुकू? Should I wait or should I go to the question? Okay, I'll wait. Yeah. So I'll just write the formula here. अगर हम ये लिख रहे हैं तो sin of phi cos of phi या tan of phi भी ले सकते हैं। Yeah, I'm going to the question. 1 minute, Dhruvin. People have asked me to wait for 1 minute. So meantime, you can just write the sin cos over here also. इसका sin phi भी लिख सकते हैं आप। क्या होगा? XL माइनस XC अपॉन यू नो XL माइनस XC अपॉन Z। cos phi क्या होगा? R by Z। tan phi क्या होगा? XL माइनस XC या XC माइनस XL अपॉन adjacent, that is R. So ये अगर आपको ये स्लाइड भी अगर आपको याद रहा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बेझिझक सॉल्व कर सकते हैं। And what is ER? ER is nothing but I into R. Simple Ohm's law है. Current going through all of it is I. What is EL? EL is I into anybody? What is EL? What is the voltage across this inductor given as I into L? लिखूं तो करेक्ट रहेगा? क्या लिखना चाहिए मुझे? I into XL. Very good. And what is EC? I into XC. याद आया? ऐसा
लास्ट ईयर अपन ने कुछ 2020 में पढ़ा था, कब पढ़ा था याद नहीं आ रहा मुझे। यस यस, तभी तो हमने लॉकडाउन में पढ़ा था ये। यस ओके, डन। अच्छा तो चलो डेटा की तरफ भाग के चलते कि क्या दिया है भाई। आर का वैल्यू दे दिया है, रेजिस्टर इज 10 ohms. So we are doing the fourth question of the question bank right now. Reactance, reactance यानी कि x बताया है, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल कुछ ना, डायरेक्ट रिएक्टेंस दे दिया है। यानी कि हो सकता है वो एक्सएल माइनस एक्सी हो सकता है वो एक्सी माइनस एक्सएल हो। इट इज 7√2 बताया है हमको ओम्स में। अब z क्या होता है, इम्पिडेंस होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7√2 द होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 प्लस क्या हो जाएगा ये 7√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो 98 लिख दिया। सो ये अंडर रूट ऑफ 198 हो गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 198, क्या आप देख सकते हैं अगर आपके पास लॉग बुक है, इट शुड मैच टू दैट आंसर। आ रहा है? 14.07 आता है अंडर रूट ऑफ 198। yes or no? Because 14 into 14 is 196, right? तो थोड़ा सा ज्यादा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो 14 से थोड़ा ज्यादा होता है। सो 14.07 is your correct answer and it is obviously in ohms. तो z पता चल गया। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कोई डाउट है तो पूछो भाई, फटाफट पूछो, एक्टिव हो जाओ, पानी पियो, कुछ भी करो, बट बैठ के सुन लो एक बार, और हाथ में हमेशा बुक और पेन रहना चाहिए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। कैन आई मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन? ये बहुत ही सिंपल था, हमने बेस्ड ऑन आरएलसी का कंसेप्ट लगाया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, राइट? उन्होंने ये साथ में ही जेड का एक्स करके दे दिया था अपने, नो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल कुछ निकालना नहीं पड़ा हमें, डायरेक्टली उन्होंने एक्स दे दिया था यहाँ पर और डायरेक्टली उन्होंने आर दे दिया था और हमें जेड पूछ लिया था। कंप्लीटेड गाइस, रुकू? I hope all of you are revising every day. I will try to finish all the numericals of section 2. Jitna I can complete, I will finish all the numericals for you. So you can keep checking. Numericals और derivations हम finish कर देंगे, ठीक है? और अगर आपको कुछ भी डाउट है, मैंने आपको नंबर दिया है, आप मुझे करें तो आई विल सॉल्व द डाउट इन द क्लासरूम। तो जब अपना लेक्चर होता है तभी सॉल्व कर लेंगे। यस साहिल, हो गया सबका, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये तो
देखो, नो ऑनलाइन ही होगा मृणाली, मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। सो ये रेजिस्टर 10 ओम्स है, तो आर हमारा 10 ओम्स है, इंडक्टेंस एल है विच इज 100 मिली हेनरी, एंड जो कैपेसिटर है इट इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट, मतलब अपने को ई आर एम एस दिया है, जो भी वोल्टेज दिया रहता है क्वेश्चन में वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है, और जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है ना वो एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एट व्हाट कैपेसिटेंस वैल्यू विल दिस रेजोनेंस अकर, मतलब रेजोनेंस अकर हो चुका है, बट हमको पूछा गया कि कौन से कैपेसिटर के वैल्यू पे इसको 50 आया। सो दिस इज बेसिकली अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, इट इज इन द टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। सो एफ आर अभी मैंने डिस्कस किया इन द बिगिनिंग, 1/2 रूट ऑफ क्या है, एल सी है, तो व्हाट इज एफ आर का स्क्वायर, एफ आर का स्क्वायर होगा 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, मुझे सी निकालना है, सो इट इज 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू एफ आर स्क्वायर, right? So now what I'm going to do is I'm going to substitute all the values here. So what is c equal to 1/4 into, what is pi ka square, can I say it is 9.86, into what is L, L is 100 millihenry, that is 10 into 10 raised to minus 3, that is 10 raised to minus 1, into FR ka square is 25 into 10 to the power 2, correct? So ये -1 और +2 हो जाता है 10, right? 25 into 4 क्या है 100, so what is this coming to, this is coming to 1/9.86 into 10 to the power 25, 4 100, 100 के साथ एक और 0, 3 हो गया, एग्रीड। सो ये हो जाएगा, कैन एनीबडी गिव मी द रेसिप्रोकल, अगर आपके पास लॉग बुक है, रेसिप्रोकल ऑफ 9.86, बिकॉज दिस विल बिकम 10 टू द पावर -3। एनीबडी 1/9.86 का रेसिप्रोकल, यस 0.1014 कुछ आता है, 0.1014 इंटू 10⁻³ आ रहा है, आया सबको? सो इसलिए हमारा जो C का वैल्यू है, आई कैन से इट इज 101.4 माइक्रोफैराड। प्लीज चेक दिस आंसर। प्लीज टेक द सोल्यूशन डाउन, क्योंकि यहाँ का आंसर मैच नहीं होता। Completed everybody? So you can take a screenshot of this because इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। This is correct, 101.4 माइक्रोफैराड। हो गया? आप में से कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ? आप में से कितने लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बुक में सॉल्व कर रहे हैं? Okay, so कोमल, पंकज, नंदिनी, मृणाली, महक, okay, good. शॉन, आई, महक, प्रिया, तृप्ति, अच्छा, वेरी गुड।
मुझे तो फुल मार्क्स चाहिए अभी 12th स्टैंडर्ड में, फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100। क्या क्या फीलिंग होगी वो, 100 आउट ऑफ 100। हो गया। वो वैसे भी क्वेश्चन बैंक से ही डालेंगे, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन वो क्वेश्चन बैंक से ही डालेंगे, उनको सिंप्लिसिटी बनाए रखनी है सारे एग्जाम में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Can you see the screen, guys? Everyone can see the screen? Yeah. कोमल, अभी देखो जरा, वापस चेक करो अपना क्वेश्चन। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द करंट in a circuit consisting of a coil and a capacitor in series with an AC source of 110 volts RMS and 60 volt. The inductance of the coil, अभी ये जो coil बोलते हैं ना, coil, तो हमेशा उसको RL समझने का, इसलिए वो बोल रहा है ना, उसके बाद में क्या बोल रहा है, द इंडक्टेंस of the coil is this and the resistance is this much. So what kind of a circuit आपके दिमाग में आ रहा है? ये कैसा सर्किट है आपके दिमाग में, कैसा सर्किट आ रहा है? मैंने कहा what is the current in a circuit consisting of a coil and a capacitor in series. So आपके दिमाग में कैसा सर्किट आ रहा है? Yes, कोमल, नंदिनी, यस, बाकी लोग जो आंसर कर रहे हैं उसमें गड़बड़ कर रहे हो, आप वापस पढ़ के देखो। कॉइल मतलब क्या होता है? कॉइल मतलब RL होता है, ऊपर से CB है, तो इट इज एन RLC सर्किट। डू यू एग्री गाइस? R और L उसका कॉइल बन रहा है, कॉइल, और ये रहा उसका सर्किट। ये एक RLC सर्किट है, 100% है, और ये 110 वोल्ट RMS वैल्यू और 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसा हो रहा है तो लेट्स सी, R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है, कितना है रेजिस्टर का वैल्यू? 50 ओम्स। L का वैल्यू क्या होता है? 0.8 हेनरी। C का वैल्यू, C का वैल्यू है 8 माइक्रोफैरेड, मतलब 10 टू द पावर -6। ERMS दिया है, द टोटल वोल्टेज इज 110 वोल्ट, frequency is 60 hertz. Okay, what should be my first step? Who will tell me? What should I find? मुझे करंट ढूंढना है, find the current. Anybody who can tell me what will be the first step? Very good, Anand, Komal, Dhruvin, very good. So what we have to find? Impedance. Very good. So Z is the impedance, राइट? Z पहले निकालेंगे हम लोग, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो करंट ढूंढ ही सकते हैं। व्हाट इज Z? Z इज अंडर रूट ऑफ, Z इज अंडर रूट ऑफ, अब हमें ढूंढना पड़ेगा ना XL और XC। डू यू एग्री? तो क्या Z हमारा पहला स्टेप है कि हमें XL और XC भी ढूंढना पड़ेगा पहले? क्योंकि हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गो टू दैट ट्रायंगल एंड शो यू अगेन। हम RLC सर्किट है, वापस यही स्लाइड है। सो वी हैव टू चेक XL एंड XC फर्स्ट, right? We have to check XL and XC first. So what is XL? Let us check for XL first. XL is equal to 2 pi FL, which is 2 pi into, what is frequency? 60. What is L? 8 into 10 raised to -1, right?
So this is coming to how much? 6 8s are 48. 48 2s are 96 pi कुछ आ रहा है. वेरी गुड कोमल. अब सेकंड आप मुझे XC बताएं. व्हाट इज XC? XC is 1/2 pi FC, which is 1/2 into pi into what is the frequency? 60 into what is C? 8 into 10 raised to -6. तो ये कितना आ रहा है? This will become 6 8s are 48. 1 upon, अगर हम 96 पाई लिखते हैं, 10 to the power कितना हो जाएगा? Can I say 10 to the power 5 है ऊपर? राइट? कौन बड़ा है फिर, XL या XC? Who is big? XL या XC? कौन बड़ा है यहाँ पे? XC बड़ा है. वेरी गुड. सो कैन आई से दैट XC इज ग्रेटर देन XL? तो नेट X ढूंढना पड़ेगा. नेट X क्या है? The net X is going to be XC minus XL. The net X is going to be XC minus XL. Can you search and tell me how much is XC minus XL? Can you search and tell me or calculate and tell me how much is XC minus XL? कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा इसका, बिकॉज उन्होंने हमें डायरेक्ट XC और XL नहीं दिया है, सो वी कांट हेल्प इट. It's going to be a big value there. So I'll tell you the steps. Yes. This comes to around, yeah, this comes to around 301.44 approximately. Yeah. और ये कुछ 331, राइट, 0.7 कुछ आता है, 74 ऐसा कुछ आता है, राइट. तो जैसे आप बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 30 कुछ आएगा. थर्टी 30.3 कुछ आएगा. ये अप्रोक्सीमेटली 30.3 आ रहा है. मैं इसको 30 ले रही हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस. अब हमें Z ढूंढना है, तो मैं Z ढूंढ रही हूँ. Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर. R कितना है यहाँ पे? R कितना है? 50. 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर. दिस इज, सो Z अप्रोक्सीमेटली लेके आ सकते हैं. Z कितना होगा? यस, अप्रोक्सीमेटली 58.3 कुछ आएगा. 58.30 ऐसा कुछ ओम्स आएगा. राइट. नाउ व्हाट इज Z? Z इज द टोटल इम्पीडेंस. सो Z क्या होता है? ERMS अपॉन IRMS. यस और नो? Z क्या है? ERMS अपॉन IRMS. और हमें ढूंढना क्या है? IRMS. So what is ERMS? ERMS is 110 volt upon 58.3.
This is going to be the IRMS. That is 110 volt, 58.3. So this comes to 1.8867 approximately ampere. So that is the answer. IRMS is 1.88 amperes. ये आपका आंसर होगा. कोई डाउट है इसमें, डिफिकल्टी है? आपको समझा हमने क्या किया? हमने पहले एक्सेल निकाला, फिर हमने एक्सी निकाला. अगर वैल्यूज थोड़े बहुत ये होते तो हम लोग को कैलकुलेशन फास्टर पड़ता था. हमेशा चेक करने का कि कभी कभी पाई है ना 22/7 से भी सॉल्व होता है. सो देखने का कि कहाँ पर पाई 3.14 डालना है या 22/7 से कभी कभी सॉल्व हो जाता है. तो वो भी आपको चेक करना है. तो एक्सेल पहले किया, फिर एक्सी किया, फिर चेक करना है कि एक्सेल और एक्सी में बड़ा कौन है. इसलिए टोटल एक्स ढूंढना है, क्योंकि फिर आएगा z इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक बार वो मिल गया तो z इज ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस. Shall I wait for 1 minute? Calculations are important. We cannot skip them. And hence we have to use Z is equal to ERMS upon IRMS. Z हमारा total impedance होता है हमारे AC circuit का. ERMS is the voltage upon IRMS is the current. Is this slide done? Yes, only in the chapter of AC circuits you will get a little calculation more. दो चैप्टर हैं ऐसे फिजिक्स में जिसका कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है. वन इज एसी सर्किट्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स. याद है आपको, इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स में भी आपके कैलकुलेशंस काफी हैं. तो ये दो जो टॉपिक्स हैं इसका आप एमसीक्यू करें या आप 12th करें, आपको थोड़ा कैलकुलेशन तो आएगा ही. Is it over, guys? Can we go to the next question? Shall we go to the next question? Okay. Okay, so now this question, can anybody tell me which formula to use? ये क्वेश्चन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 0.5 माइक्रोफैरड एंड इंडक्टर का वैल्यू दिया है 10 मिली हेनरी. अगर ऐसा है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? Yes. What is the formula? Everyone knows 1/2 pi root of LC. Can you solve this on your own and give me the answer? Please solve this on your own and give me the answer.
10 to the power 4 आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10 है और ये 10 to the power -5 है, तो एक कट गया, फिर 10 to the power 4 ऊपर गया, नीचे बचा pi√2। 1/√2 0.707 होता है। जीरो पॉइंट 225 करके कुछ आएगा, into 10 to the power 4, which can be written as 2.25 into 10 to the power 3 hertz. Okay with the answer, guys? Any doubts, difficulty? So आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और RLC वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो RLC और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको कुछ भी MCQ का डिफिकल्टी होगा, आपका कोई भी डेरिवेशन में आपको डिफिकल्टी है, तो आप प्लीज मुझे भेजें, आई विल देन डू इट। Done? Can we move to the next question? So we can finish off AC circuits today. Okay. So now, shall I just discuss the formula if you don't mind? Because I'm falling short of time. So calculation you can do. So shall I discuss the formula quickly? Is it fine? So if what is the capacitive reactance? क्या पूछा है? कोई बताएगा मुझे? Capacitive reactance मतलब क्या पूछा है? What is capacitive reactance? XC, very good. तो हम लोग को C दिया है उन्होंने 5 माइक्रोफैरड, ओके, एंड उन्होंने पूछा है कि XC कितना होगा इफ फर्स्ट केस में उनको चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट है तो XC कितना होगा। XC is what formula? 1/2 pi, yes Jitish, F that is 50 into C, 5 into 10 raised to -6. I hope you'll be able to solve this. तो ये A पार्ट का आंसर आना चाहिए आपको। फिर दिस विल बी वेरी सिंपल राइट, ये 100 इधर ही हो गया, सो इट इज बेसिकली 1/5 पाई इंटू 10 to the power 2 और ये -6 हो गया, -4 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 4। बी पार्ट में फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज, क्या है 20 किलोहर्ट्ज, तो हमारा XC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई इंटू 20 किलोहर्ट्ज, मतलब 20 इंटू 10 to the power 3, right, into C, that is 5 into 10 to the power -6, 20 kilohertz. So यहाँ पर भी आपको easy हो जाएगा, 5 into 20 is again 100. So यहाँ पर आप solve कर पाएंगे according to me. You'll be able to solve. This will become 1/2 pi into 10 to the power कितना जाएगा -6 और 3, -6 और 3 और 3 कितना हो गया 20 into 5 is 100. So ये 5 और -1 is -1 आएगा, ऐसा कुछ आएगा. So you will get both the answers.
चलेगा? दिस इज सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला 1/2 पाई FC. फ्रीक्वेंसी को 2 बार चेंज करके उन्हें कैलकुलेशन करना चाहिए था. ओके या ओके. सिमिलरली उन्होंने दिया था व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सेल उन्होंने पूछा है. एक्सेल इज इक्वल टू हाउ मच, एंड एल का वैल्यू दिया है 10 मिली हेनरी. 10 मिली हेनरी इज 10 into 10 raised to -3 हेनरी. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो राइट. सो व्हाट इज एक्सएल इक्वल टू? एक्सएल इज 2 पाई FL. क्या आप कर पाएंगे? दिस विल बिकम 2 पाई इंटू 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है? 10 into 10 raised to -3 राइट. तो एक एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 1000. सो एक्सएल क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू 1000 इंटू 10 रेज टू -3. ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा. और थर्ड पार्ट में क्या है? एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 इंटू 10 to the power -3. तो यहाँ पर भी आप निकाल पाएंगे, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा. नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी. यस वेरी गुड कोमल, आंसर भी आ गया आपको. वेरी गुड. ये तो डायरेक्टली पाई आएगा. 52 सा कितना है? 100. 100 और ये 3, तो यहाँ पर 3.14 ओम्स ही आने वाला है आपको. यस यस, यहाँ पर भी आपको बहुत इजी है. 10 to the power 3 और 10 to the power -3 हो गया. ओके आर्यन वेरी गुड, आपको भी आया आंसर. तो यहाँ 62.8 आपको आंसर आ जाएगा और लास्ट में 1256 भी आ जाएगा. कोई दिक्कत है इस क्वेश्चंस में? आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत ही इजी लग रहा है मुझे. एक्सी और एक्सएल, और उन्होंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज जो है वो हर बार चेंज किया है. तो फॉर्मूला में कुछ चेंज, कुछ निकालना नहीं है. अच्छा हमारे 2 क्वेश्चंस बच गए हैं. हमारे 2 क्वेश्चंस बच गए. क्या हम एक क्वेश्चन जल्दी से देख लें? ये वाला देख लेते हैं. हाँ, ERMS हमें दिया है. ERMS हमारा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं. ERMS हमारा दिया है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 50 हर्ट्ज है. ठीक है. अब इट्स कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर ऑफ 50 ओम्स. क्या बोला? प्योर रेजिस्टर ऑफ 50 ओम्स. मतलब ये कैसा सर्किट है? एनीबॉडी? आरएमएस वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, प्योर रेजिस्टर ऑफ 50 ओम्स और पूछा है कि फाइंड द करंट. यस वेरी गुड चिल्ड्रन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल. ओनली आर. ये कैसा है? ओनली आर. सो आर का फॉर्मूला क्या है? सो व्हाट इज IRMS? IRMS is nothing but ERMS upon R. That means this is 230 divided by 50. आ जाएगा पहला आंसर. तो पहला आंसर डन हो जाएगा. नेक्स्ट में क्या चाहिए? इक्वेशंस फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सबको समझता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज. इसके लिए हमें I नॉट ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज I नॉट? डू यू एग्री? इट इज √2 into IRMS. I नॉट इज √2 into IRMS. तो अगर ये 4.6 एम्पियर आपको मिल रहा है, so what is √2? What is √2? 1.414 into 4.16. 4.6. Can you quickly calculate and tell me? 1.414 into 4.6. 1.414 into 4.6. I think 6.5 कुछ आता है. आ रहा है 6.5. सो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे I is equal to 6.5. समझता है कैसे लिखने का ना? I is I नॉट साइन ओमेगा t. ऐसा लिखते हैं हम लोग. सो 6.5 साइन ऑफ व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई f. 2 into pi into 50.
2 into pi into 50. So can I write it as 100 pi t? चलेगा 100 pi t. तो ये आपका इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आंसर आ गया. Okay, similarly, can I find for voltage? What is RMS value? 230. अगर RMS value 230 है तो छोटा E नॉट क्या होगा? It will be √2 into 230. मतलब √2 into E RMS. That is 1.414 into 230. कोई मुझे बता पाएगा कि ये कितना आ रहा है? How much is 1.414 into 230? 1.414 into 230 comes to 325.2 कुछ आता है. Yes, very good, Tripti. So 325.22 आता है. अगर ऐसा आता है, can I write E is, what is E? E is E naught. E naught sin omega t. Omega t is 100 pi t. And that will be our final answer. इसलिए उन्होंने यहाँ दिया है E नॉट इतना है और ये आपका देखो आंसर लिखा है E is 325.27 साइन ऑफ 100 पाई टी. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? Done, everybody? So I'll send you the PDF, so don't worry about it. You can cross check your answer once again. They have given the question, Anand. देखो पहले पूछा है कि find the current और second पूछा है equation for instantaneous values of current and voltage. तो हमें पहले क्या किया, RMS वैल्यू हमारे पास था, हमने पीक वैल्यू निकाला और हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ओनली आर क्या होता है? I is equal to I naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t. तो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है I naught और E naught का वैल्यू. ओके बेटा? Yeah, got it, Anand. I hope that solves your doubt. क्या हुआ मृणाली? 100 पाई बेटा 2 पाई ओमेगा इज 2 पाई एफ टी. 100 पाई ना ओमेगा इज 2 पाई एफ. ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना. तो मैंने किया 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, देखो ऊपर दिया है 50. सो दिस इज माई ओमेगा ना. सो ये हो जाता है 100 पाई. सो ओमेगा इज 100 पाई बेटा. यस, ये सारे क्वेश्चंस ध्रुविन मैं क्वेश्चन बैंक से कर लूं. क्लियर हुआ मृणाली? ओके. नॉट नेसेसरी शॉन, आपको सिर्फ वो पाई में रखना है, या आपको वो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं होती. हाँ, उधर ही छोड़ देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है बेटा. उन्होंने क्या पूछा है? इक्वेशंस. तो क्वेश्चन पढ़, इक्वेशंस बोला है ना, तो उनको इक्वेशन चाहिए, थोड़े ना सॉल्व करके वैल्यू बताएंगे. कौन बैठ के करेगा भाई? हाँ, लास्ट क्वेश्चन देख लेते क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते. ये एसी सर्किट्स का लास्ट क्वेश्चन है. A radio tuned over a frequency range of broadcast, एक frequency range दिया है. If LC circuit has an, यानी कि L दिया है, what must be the range of its variable condenser, मतलब C. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई सोचेगा? मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं. अगर वो LC सर्किट की बात कर रहे हैं और रेडियो की बात कर रहे हैं, रेडियो की जब बात करेंगे कभी भी, इट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है. FR को 2 बार सॉल्व करना है. व्हाट इज FR का फॉर्मूला? 1/2 पाई रूट ऑफ LC. इसको 2 बार डालना है, 2 बार C की वैल्यू निकालनी है. मतलब FR स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू C. तो इसको मैं C1 डाल देती हूँ और फ्रीक्वेंसी FR1 डाल देती हूँ. चलेगा आपको? क्योंकि L की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है. तो C1 क्या होगा? 1/4 इंटू 9.86
इनटू अपनी एल की वैल्यू कितनी है 200 मिली इंटू 10⁻³ और अपना एफ आर कितना है 800 किलोहर्ट्ज, मतलब ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आपको आपका पहला आंसर मिलेगा, दैट इज 88 पिकोफैरेड मिलेगा। फिर यही फॉर्मूला डालना है, बट ये C2 हो जाएगा विच इज 1/4 इंटू 9.86 इंटू 200 इंटू 10⁻³ इंटू FR स्क्वायर का मतलब होता है दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी। दूसरा वाला कितना है इंटू 1200 इंटू 10⁻3। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? और आपको ये 198 पिकोफैरेड मिलेगा। सो एक को सॉल्व किया तो 88 पिकोफैरेड। पिको कितना होता है, हाउ मच इज पिको, 10⁻⁻12 मिलेगा। कैन यू ऑल चेक द आंसर, ताकि हम इस लेक्चर को एंड करते हुए वी कैन जस्ट चेक वेदर यू आर गेटिंग दैट आंसर। आई विल क्विकली कैलकुलेट दिस, तो हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं बिफोर आई कंक्लूड। डिवाइड करना है, -3 और +3 वैसे ही कैंसिल हो गया हमारा। इसमें थोड़ा आंसर वेरिएशन हो रहा है। सो दिस इज 16, 4 into 16 is 64, right? So 9.86 I think this answer comes to 0. ये कुछ 0.00158 कुछ आता है इंटू 10⁻, ये 2 और ये 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। Correct? So I think you should get something like this farad. इतना farad आ रहा है। 1584 पॉइंट समथिंग आएगा, 1584 पॉइंट समथिंग आएगा। Did I miss something? अच्छा अच्छा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ थैंक यू अस्मिता, स्क्वायर करना है अपने। यस यस, थैंक यू बेटा। सो यहाँ पर हमारा 800 का स्क्वायर हो रहा है इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर आंसर बराबर है। और यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर हो रहा है, सो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, एक 3 बचेगा। Yes, this is 10⁻² into 10⁻³ into 1200 into 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर बराबर है। बिकॉज 8 8 64 हो रहा है फिर। Is it done, guys? So this one answer should come 88 picofarad and the other should come around 198. वो आएगा, मैं स्क्वायर भूल गई थी तो वहां पर स्क्वायर डाल दिया मैंने। तो हमें बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन,
इसको पहले पढ़ेंगे तो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ भी नहीं है। एल की वैल्यू दी गई थी और फ्रीक्वेंसी के 2 वैल्यूज दिए गए थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के 2 वैल्यूज। तो हमें 2 वैल्यू ऑफ कैपेसिटर ढूंढने थे जहां पर रेजोनेंस अकर होता है। गॉट इट? सो आई विल पास दिस पीडीएफ टू सर बाय टुनाइट, and you can please redo the questions once. आप फास्टर कर पाएंगे इसको, एक बार आप रिवाइज कर लेना, इतना ही करना, ज्यादा टेंशन मत लेना, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ओके, so thank you for joining me, thanks a lot guys, and best wishes to you. Please study, please send me your doubts on my WhatsApp number which I have provided, so that I can discuss the doubts, ताकि कोई भी doubts रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम पूरी मेहनत करेंगे इन दिस कमिंग फ्यू डेज, सो दैट वी गेट मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू इन एनी एडमिशन प्रोसेस। जितना मार्क्स ला सकते हैं उतना कोशिश करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग।